नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने आईटीसी लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो जो ऑन द डेली बेसिस हम वी कंज्यूम लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम द यूट्यूब। हम यूट्यूब से बहुत सारा वीडियोस कंज्यूम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी शुड ट्राई टू give also, because the world is going to remember us for what we give and not for what we take or what we receive, because we are consuming so many videos from the early morning to late night. We are consuming the videos, we are consuming. When we are consuming so much videos, so it is our primary duty to give something in return also, to return back, because the world is going to remember what we give and not for what we receive, because we remember Bhagat Singh, that he gave his life for our country. We remember Thomas Alva Edison because he gave electric bulb to the society. In the same way, we are also supposed to give something instead of only receiving. So as now coming back to the chart, if we see ITC Limited, the stock has you can see a drastic fall in the stock. Here you can see a big Morobozu candle. This was on the 1st February when the government of India increased the tax, when imposed additional tax, so the stock fell drastically, and now the stock is forming a base or bottom, and now it is trying to inch upwards. As far as super trend is concerned, now the super trend is negative. The super trend will become positive only if it crosses 333.386. So if it closes above this candle, then its super trend will become negative. Now we are seeing a positive move in the stock, because the whatever the additional tax has been imposed by Government of India, that is passed on to the customer. They have increased the price of cigarettes by 20 to 40%, because these cigarettes are an addictive. Even if you increase the price, the people who are addicted to this type of things, they will consume. Even the price increases also because they are addicted to this type of items, because these are thin stocks, because these are addictive. So people are not going to leave because the price has increased, and therefore the companies are able to easily pass over whatever the increase. So now we are seeing that some consolidation is happening, some base formation is happening, and now it is trying to move upwards, and now it is trying to inch upwards. Now we'll see where is the Bollinger Band, whether it's trading at the base of the Bollinger Band. Now it is trading above the 20-day SMA. This blue line is 20-day SMA. So 20-day SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और आने वाले दिनों में द स्टॉक कैन परफॉर्म वेल, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। नाउ वी विल सी व्हाट वेयर द 50-day SMA एंड 200-day EMA आर पोजीशन देमसेल्फ। हम देखेंगे कि सुपर ट्रेंड को बंद करना पड़ेगा, तभी ये आपका एक्टिव होगा, बिकॉज ये जो है इट सपोर्ट्स ओनली 2 इंडिकेटर्स एट ए टाइम। तो 4 इंडिकेटर को ये सपोर्ट नहीं करता है, दैट्स द रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू सी। सो अभी आप देखोगे ये 50-day SMA यहाँ पर है, 200 EMA यहाँ पर है, और 50-day EMA यहाँ पर है। तो मतलब द स्टॉक इज क्लियरली इन ए डाउन ट्रेंड। जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, 50-day ऊपर रहता है और 200-day नीचे होता है, ठीक है ना। जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये जो ऐसे जाके ऊपर चला जाएगा आपका 50, और ये नीचे आएंगे, फिर ऐसे मूव करेगा। सो दैट विल बी अ साइन दैट द स्टॉक इज इन अ अप ट्रेंड। नाउ यू कैन क्लियरली सी द स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। और इफ वी सी अदर पैरामीटर्स, व्हाट द अदर पैरामीटर्स हैज टू से, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 8x का वैल्यू। सो हियर यू कैन सी DI। अभी यहाँ पे देखना है कि DI पॉजिटिव ऊपर है कि DI नेगेटिव ऊपर है। तो ये दोनों में, इनमें एकदम दोनों इतने आसपास है कि पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, ठीक है ना, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो इट इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। सो वी विल इसको हम छोड़ देंगे। RSI का वैल्यू देखेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि 50 के मतलब मिड रेंज पर है, ठीक है ना।
ना तो आपका RSI ओवरसोल्ड है और ना ही RSI आपका ओवरबॉट है, इट इज इन अ मिड रेंज, क्योंकि 30 के नीचे होता तो हम उसे ओवर सोल्ड कहते हैं, और 70 के ऊपर होता है तो हम इसे ओवर बॉट कहते हैं. सो नाउ इट इज इन द मिड रेंज, नाइदर इट इज ओवर बॉट नाइदर इट इज ओवर सोल्ड. एंड एज फार एज मैकडी इज कंसर्न, वेदर वी विल ट्राई टू सी वेदर मैकडी लाइन ऊपर है कि नीचे. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, जो ब्लू लाइन है मैकडी लाइन है. मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, ठीक है दोस्तों. ये जो ऑरेंज लाइन है सिग्नल लाइन है, और लेकिन इसमें बात यह है कि जीरो लाइन के नीचे है, ठीक है ना. जीरो लाइन के नीचे है, बट यदि जीरो ये और ऊपर आ गया, जीरो लाइन के ऊपर भी हो जाएगा तो हमारे लिए ये और डबल खुशी की बात होगी. और ये जो बार्स आप देख रहे हो, ये ग्रीन बार्स है. दिस बार और आल्सो गिविंग अस लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट, हमें थोड़ा बहुत कंफर्ट दे रहा है. सो अभी जो स्टॉक है, अभी दिस स्टॉक इज नॉट अ वेरी वेरी इन अ पॉजिटिव टेरिटरी, ठीक है ना. और वैसे भी आपको पता है कि जो ITC है ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है. इसकी चाल जो है, ये चाल ये कम पकड़ता है. तो दोस्तों अभी माई स्वीट हार्ट इज टेलिंग टू स्टॉप, सो आई विल स्टॉप फॉर द डे. और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे 200 सब्सक्राइबर बन जाइए. और आप हमारे 200 सब्सक्राइबर, यू विल बी अ स्पेशल सब्सक्राइबर फॉर अस. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.